Click here to subscribe our channel. Do not forget to press the bell icon to get regular updates of free videos. Just everything about Indian Economic Service, what is required, what will be the examination pattern, cut-off score, and study material, that is sources, and how we will be conducting the class and the test series as well. So everything that you want to know related to the economic service for examination of 2023. So first of all, the purpose of this orientation class, that is objective, is to explain the course content first. So first of all, we will explain the course content. After that, the source, that is study material. Then how much you are expected to score at least. So that will be basically explained by using cutoff of the previous year, although वो vary करेगा थोड़ा बहुत. And after that, I will be explaining how we will be conducting the class. So what will be the class strategy? So few things that you are expected to know about the course part first is that the examination pattern. First of all, the examination pattern means there will be in totality 6 paper. One paper of general English, second paper for general studies, third paper is your general economics 1, then general economics 2, general economics 3, and then Indian economy. तो 1000 मार्क्स का बेसिकली ये आपका पैटर्न होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दी सीधी, so you can copy it down in fact on the first page. The examination pattern is basically the first paper will be general English, second paper is general studies. So general English and general studies of 100 marks each. So 100 marks for general English, 100 marks for general studies. General economics 1, general economics 2 and general economics 3 and Indian economy. मतलब जो कोर इकोनॉमिक्स के पेपर हो जाएंगे वो कोर इकोनॉमिक्स के पेपर 800 मार्क्स के हो जाएंगे. कोर इकोनॉमिक्स का जो पेपर होगा वो 800 मार्क्स का होगा. तो एग्जामिनेशन का शेड्यूल भी एक्चुअल में होता है. फर्स्ट डे ऑफ द एग्जाम you have to write general English and general studies first day. So first session and second session. Next day general economics 1, general economics 2. Then third day general economics 3 and Indian economy. That means in 3 days examination will be over. ठीक है. That means everything you are expected to recall in those 3 days. मतलब जितना भी कंटेंट आप पढ़ोगे you are expected to recall in those 3 days. Back to back पेपर होते हैं. That means the format of examination is difficult in that sense. अगर ये spread हो जाए, थोड़ा gap आ जाए, in a week interval अगर हो जाए, तो obviously it will be comfortable for the student. But the format is such that 2 paper every day. Now the score out of this 1000 will determine, score out of this 1000 will be basically determining the selection for the interview, and then interview will be of 200 marks. So your final selection will be out of 1200. Now out of that 1000 part first, the previous year cutoff, because इसका आइडिया स्टार्ट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लास्ट ईयर कट ऑफ वाज इन 2021. ठीक है, वो साइट पे अवेलेबल है यूपीएससी की. द टोटल वैकेंसी इन जनरल कैटेगरी वाज ओनली 7. मतलब टोटलिटी में 15 सीट्स ही थे. 21 का जो एग्जाम हुआ इसमें अराउंड 35 सीट्स है. बट 20 वाले जो एग्जाम थे उस मतलब 21 के जो एग्जाम हुए थे उसमें 15 सीट्स थे. अभी जो एग्जाम हुआ है इस बार जिसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है उसमें 35 सीट्स है. तो ये यूजुअली वेरी करता है अराउंड 15 to 30, 35. सो यू कैन एक्सपेक्ट अ लोअर रेंज ऑफ 15, अपर रेंज ऑफ 30, 35. इससे ज़्यादा वैकेंसीज इकोनॉमिक सर्विस में नहीं आती है. मतलब लोअर एंड पे वो 15 है और अपर एंड पे वो कह सकते हो 30 to 35 सीट्स होंगे. Now even when the number of seats were only 15, you can find the cutoff for the general category
minimum qualification out of 1000 was only 440, that is only 44% was cut off for qualifying for the interview stage, and the cutoff out of 1200, that is for final selection, it was 586. अब 586 अगर ये फाइनल कट ऑफ जा रहा है और 440 रिटर्न वाला कट ऑफ जा रहा है तो, और इंटरव्यू 200 का है, तो सपोज यू स्टूडेंट जस्ट क्वालिफाई 440 इसका स्कोर आ गया, बट उसको 586 चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, दैट मीन्स इंटरव्यू में 146 टू स्टिफ। तो अगर आप जस्ट क्वालिफाई करते हैं तो चांस कम होगा, जस्ट क्वालिफाई करते हैं तो चांस कम रहेगा। दैट मीन्स इफ यू जस्ट मेकिंग फॉर द इंटरव्यू स्टेज द चांसेस आर वेरी रिमोट, अनलेस आप एक्सेप्शनली वेल नहीं कर जाते इंटरव्यू के अंदर। सो योर स्कोर शुड बी, जो कट ऑफ है उस कट ऑफ से अराउंड वी कैन से, जो कट ऑफ स्कोर होगा मतलब फाइनल कट ऑफ याद रखिएगा 586 अगर है तो ये 440 का जो कट ऑफ है, इफ यू आर अराउंड वी कैन से 480 तो 470 480 विल बी अ सेफ स्कोर। दैट मीन्स इंटरव्यू के अंदर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अराउंड 100 या 110 का स्कोर मिलता है, मतलब 55-60% का स्कोर इंटरव्यू में मतलब रीजनेबल है वो टारगेट। सो अराउंड 470 to 480 आपके माइंड में होना चाहिए 470 480। कट ऑफ ऑल द 440 जा रहा है, बट योर इन योर माइंड इट शुड बी अराउंड 470 to 480, दैट विल बी अ सेफ। बट दिस वाज कट ऑफ फॉर द 15 सीट्स। अब इस बार का जो कट ऑफ आएगा उससे थोड़ा बेटर आइडिया लग जाएगा। तो ये कट ऑफ अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रहे हैं तो बट मार्जिनली फर्क होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते, हार्डली यू कैन से मतलब 440 है तो वो 435 हो गया एंड सो इस तरीके का वेरिएशन होगा। सो दिस वाज फॉर द जनरल कैट, दैट मीन्स योर स्कोर शुड बी इन एक्स, जो कट ऑफ है उससे 30 to 40 मार्क्स ज़्यादा रखना है। तो टू बी ऑन सेफर साइड इफ यू मेक अ टारगेट ऑफ स्कोरिंग 50%, लेट अस से यू मेक अ टारगेट ऑफ स्कोरिंग 50%, दैट इज सेफेस्ट, वो सेफ है बिल्कुल। एग्रीगेट में 50% है, मतलब आउट ऑफ दैट 1000 यू हैव टू स्कोर 500। ना वो 500 आप कैसे स्कोर करते हो, वो 500 का जो स्कोर आप बेसिकली कर रहे हो, वो 500 का स्कोर जब आप कर रहे हो तो अब ये 1000 मार्क्स का जो रिटन कंटेंट होगा, इन दैट 1000 यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट लेट अस से 500। नाउ टू स्कोर 500 ऑब्वियसली अगर ये कट ऑफ 440 जा रहा है और सीट्स कम है स्टिल 440 जा रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट ईजी टू स्कोर, इट इज नॉट ईजी टू स्कोर। सो हाउ यू कैन स्कोर and what are the main problems faced by the student, because question के अंदर it is not that question is too difficult, वो वाला problem नहीं होता, but the content is so wide and the marking scheme is so stiff that makes it difficult, and the format of exam also it is also making it difficult। मतलब बैक टू बैक जो पेपर होते हैं वो रिकॉल नहीं कर पाते और पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हो, बट अल्टीमेटली एग्जामिनेशन हॉल में जब लिखना होता है, सिंपल क्वेश्चन भी आ गया, क्राउडिंग आउट लिखना है, तो यू फेल टू डिफाइन इट एग्जैक्टली। लिक्विड ट्रैप भी आ गया, यू फेल टू डिफाइन इट एग्जैक्टली। हाउ मच यू विल स्कोर दैट डिपेंड्स अपॉन नॉट ओनली हाउ मच यू आर अटेम्प्टिंग, रादर इट विल बी मेनली डिटरमाइन बाई जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया उसको कितना अच्छे तरीके से लिखा है। मतलब अगर आपको 50% दे रहे हैं कट ऑफ, तो 50% के लिए सर्टनली 100% अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोर्स कंटेंट 80% भी कवर कर रखा है तो स्टिल इन दैट 80 इफ यू आर स्कोरिंग 60% और अबव 60% दैट मेक्स इट 50। तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है कि मुझे 50% का स्कोर चाहिए, बट स्कोर डिपेंड करता है कि हाउ एग्जैक्ट यू राइट, एंड व्हेन आई से एग्जैक्ट इट मींस यूपीएससी रिक्वायर बेसिकली वी कैन से सॉर्ट ऑफ बुकिश लैंग्वेज, मतलब बुकिश लैंग्वेज उसको प्रेफर्ड। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव कम दैट कंक्लूजन कि जो बुक से डायरेक्टली लिख देते हैं उनको नंबर मिल जाता है। मतलब अगर क्वेश्चन है क्लासिकल डाइकोटमी, सो इफ यू डिफाइन क्लासिकल डाइकोटमी एज इट इज एज एक्सप्लेन इन द फ्रॉयन और मैनक्यू, दैट इट रेफर्स टू द थ्योरेटिकल सेपरेशन बिटवीन रियल वेरिएबल्स लाइक आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड नॉमिनल वेरिएबल्स लाइक मनी, प्राइस लेवल एंड सो ऑन। सो इफ यू डिफाइन इट एग्जैक्टली and then you must have the ability to elaborate it, because the answer expected there is elaboration। मतलब अगर
5 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं अबाउट 100 वर्ड्स में लिखो आप। तो 100 वर्ड्स में लिखना है तो वो वर्ड्स वेल क्राफ्टेड होने चाहिए, बट वो तभी आ सकते हैं आंसर शीट में जब आपने उसको पहले नोटबुक में लिखा हो, 2-3 बार आपने उसको खुद प्रैक्टिस कर रखा हो, एंड देन यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस इन द पेपर। सो ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, यू हैव योर मेन ऑब्जेक्टिव विल बी टू स्कोर लेटर से 500, बस सेफ होने के लिए 500 है, थोड़ा बहुत अगर कम रहता है स्टिल यू आर सेफ। नाउ फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दैट 500, स्टूडेंट टू स्टूडेंट थोड़ा वेरी करेगा। सम स्टूडेंट मे बी कंफर्टेबल इन मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल पार्ट, बट उनके लिए फिर जनरल इकोनॉमिक्स 1 स्कोरिंग हो जाएगा। इफ यू आर कंफर्टेबल इन ऐसे इकोनॉमेट्रिक्स, comfortable in micro numerical, which will be the main content of this first paper, then you can score more in general economics 1, but traditionally most of the student score less here। ठीक है, आप जितने भी selected students अगर उसका मार्कशीट आप देखो तो उन सबके स्कोर जनरल इकोनॉमिक्स 1 में कम है। ठीक है, बिकॉज द क्वेश्चन पेपर इज ऑल्सो टू सम एक्सटेंट वेरी अनप्रडिक्टेबल, मतलब कभी कभी बिल्कुल वन साइडेड क्वेश्चन आ जाता है, एक तरीके का क्वेश्चन। तो general economics, but if you are comfortable in mathematical parts, then for that purpose you can focus more on general economics 1. Then general economics 2 and 3 basically include your micro content, macro content, money, banking and finance, international economics, growth and development, which include environmental economics, so everything else. Although micro का content इस first part के अंदर भी होगा, यहाँ भी micro का content है, welfare का question यहाँ भी होगा, कुछ माइक्रो मार्केट सेक्टर के क्वेश्चन यू विल फाइंड इन जनरल इकोनॉमिक्स 1 आल्सो एंड 2 एज वेल, मतलब दोनों के अंदर मिलते हैं क्वेश्चन, बट दैट मींस माइक्रो क्वेश्चन विल फाइंड इन फर्स्ट पेपर एज वेल एज इन द सेकंड पेपर, एंड सम न्यूमेरिकल आल्सो इन द थर्ड पेपर फॉर मैक्रो। ठीक है, मैक्रो वाले सेक्शन के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो जो सेकंड और थर्ड पेपर है ये कह सकते हैं इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं होते, ये मेनली डिस्क्रिप्टिव है। यू विल फाइंड 1 or 2 रेयरली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, बट इन फर्स्ट पेपर इट इज मेनली कैलकुलेशन। एंड द लास्ट पेपर इज इंडियन इकोनॉमिक्स। इन दैट इंडियन इकोनॉमिक्स द अप्रोच इन इकोनॉमिक सर्विस एंड द अप्रोच इन सिविल सर्विस विल बी स्लाइटली डिफरेंट। द फोकस इन इकोनॉमिक सर्विस इज मोर ऑन द रीसेंट टॉपिक जो करंट रिलेटेड होंगे। It is not that all question will be on current, but the main focus will be on the current. ठीक है, जैसे write a short note on smart cities, write a short note on make in India, write a short note on आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो उस तरीके के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको ज़्यादा करने हैं यहाँ पे। और इकोनॉमिक सर्विस में और सिविल सर्विस के अंदर जो इंडियन इकोनॉमी का पेपर है उसमें डिफरेंस इज दैट इन इकोनॉमिक सर्विस यू डोंट हैव टू कवर प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमिक हिस्ट्री आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट दैट इज इंक्लूडेड इन सिविल सर्विस, ऑप्शन के अंदर वो इंक्लूडेड है। सो दैट इज द ओनली माइनर डिफरेंस बिटवीन सिविल सर्विस एंड इकोनॉमिक सर्विस रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमिक्स पेपर। क्लियर? नाउ तो कट ऑफ इज क्लियर, द फॉर्मेट ऑफ एग्जाम इज क्लियर, जस्ट कंसिडर सम डिटेल इफ यू वांट टू राइट द फर्स्ट पेपर। The main content in first paper is basically micro and statistical and econometrics. So if you divide micro, the first topic will be here theory of consumer demand. और यहाँ पे अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन देखो तो रिपीटेडली कुछ क्वेश्चन आ रहे होते हैं यूटिलिटी फंक्शन का, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन लिखना है या स्टक्स की इक्वेशन एक्स एन अप्रोच से सेपरेट करना है, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। सो विल फाइंड सम रिपीटेडली, मतलब पास्ट ईयर का जो क्वेश्चन होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होगा। पास्ट ईयर में इट इज़ नॉट कि आप 15-20 ईयर का पूरा क्वेश्चन करें, इफ यू आर कवरिंग लेट अस से 5 to 10 ईयर लास्ट, so that will be enough. Topic wise question for economic service will also be uploaded here. That is for the paper 1 जितने भी क्वेश्चन है, suppose you want to attempt only consumer demand question, then all question from consumer demand will be separated और वो एक जगह पोर्टल पे अपलोडेड मिलेगा। Similarly for theory of production, so first part in first paper will be theory of consumer demand, second part will be theory of production. तो theory of production में you are expected to calculate questions like find out elasticity of substitution. अब constant elasticity of substitution का कोई production function दे दिया और वहाँ function से क्या निकाल रहे हैं हम, elasticity of
substitution calculate करें या write down the equation for expansion path. So you have to write down the equation for expansion path for any given production function. Then how to write that equation for expansion path? So the second part is basically theory of production. Third is theory of value. Theory of value is basically dealing with pricing practice. ये mainly pricing practice है. And then theory of distribution. So distribution questions like what do you mean by quasi rent, how economic rent is different from quasi rent. ये regularly हर साल आप क्वेश्चन देखो, 1 or 2 क्वेश्चन every year. How rent is depending upon elasticity of demand, modern theory of rent. If there is a monopsonist in the labor market, what will be the wage? So basically this is theory of distribution, and main distribution theory apart from these will be Ricardian theory of distribution, Kaldor theory of distribution, Kaliske theory of distribution. तो कैल्डोर के क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए, कैल्डोर है, रिकार्डो है और कैलस्की, ये 3 मेन है अपार्ट फ्रॉम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो. बट इन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जनरली द क्वेश्चन इज डिस्क्रिप्टिव बट मे बी आस्क्ड न्यूमेरिकली एज वेल. तो जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी बनती है क्लास के अंदर वो न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर लेंगे. एंड द फिफ्थ पार्ट हियर इज वेलफेयर इकोनॉमिक्स. Fifth part is welfare. That means in micro section there are 5 parts: theory of consumer demand, then production, theory of value, distribution and welfare. तो welfare में questions from Pareto optimality, questions from Kaldor's compensation criteria, questions from Setosky paradox. वो repeatedly question आ रहे हैं. repeatedly का मतलब हो गया अगर आपने उसको practice करके रखा हुआ है, याद करके रखा हुआ है, तो वो question आपको मिल जाएगा. That means if you are prepared around in welfare, if you are prepared around let us say 8 to 10 maximum question, और वो रटा हुआ आपको, मतलब आपने इसको 1-2 बार लिख रखा है, out of that 10 you will certainly get 2 or 3, बट आपको वो एग्जैक्ट वहाँ पे लिख देना है बस. अब एरो का वेलफेयर फंक्शन आया, एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम आई, ऑल 5 कंडीशन अगर आपको एग्जैक्टली मालूम है उसको स्पेसिफाई कर देना, एक्सप्लेन कर देना. तो एरो वेलफेयर फंक्शन, एकेसेन वेलफेयर फंक्शन, पैरेटो एफिशिएंसी, कैल्डोरस क्राइटेरिया, सेटोस्की पैराडॉक्स, ये कुछ रेगुलरली जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं. तो फ्रॉम वेलफेयर यू गेट, मतलब इट यू हैव टू बेसिकली डिपेंड अपॉन प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब इसमें कोई न्यू कंटेंट बेसिकली नहीं बन रहा. और फ्रॉम वेलफेयर ऑल्सो दे आर नॉट आस्किंग न्यूमेरिकल, मेनली दे आर आस्किंग न्यूमेरिकल फ्रॉम थियरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोडक्शन. कंज्यूमर डिमांड और प्रोडक्शन के न्यूमेरिकल, और बाकी जो न्यूमेरिकल मार्केट स्ट्रक्चर का होगा वो आपको नेक्स्ट पेपर के अंदर आएगा. बट दिस इज वन पार्ट ऑफ जनरल इकोनॉमिक्स 1. दिस इज वन पार्ट. द अदर पार्ट इज स्टार्टिंग विद दिस पार्ट बी, मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल एंड इकोनॉमेटिक्स मेथड. ये 2 सेक्शन बेसिकली सेकेंड पार्ट के अंदर है. मतलब फर्स्ट पेपर को अगर आप डिवाइड करेंगे बिटवीन 2 पार्ट, then one part is micro, other part is mathematical methods in economics and statistical and econometrics method. Clear? तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया. मतलब if you are dividing the first paper here, general economics 1, then general economics 1 is basically divided into 2 part: micro, जिसके further सब part हैं 5, and second part is your maths, stats and economics. और पेपर का जो डिवीजन है वो भी ऑब्वियसली जो जनरल इकोनॉमिक्स 1 है दैट इज फॉर 200 मार्क्स. आउट ऑफ दैट 200 एक्सपेक्टेडली अराउंड 100 मार्क्स का माइक्रो का कंटेंट होता है, ऑल्दो रिजिडली फॉलो नहीं होता. इट मे बी 120 ऑल्सो, NAT ऑल्सो, और रिमेनिंग वी कैन से 100 फॉर मैथ्स, स्टैट्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स. नाउ जिनके लिए मैथ्स, स्टैट्स या इकोनॉमेट्रिक्स डिफिकल्ट है या ग्रेजुएशन लेवल पे उतना स्ट्रांग नहीं है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपने उतना डिटेल में नहीं कर रखा, तो जस्ट रिमेंबर दिस इज 100 मार्क्स आउट ऑफ ओवरऑल स्कोर 1000 है. तो ये 100 मार्क्स का आपका मैथमेटिकल साइड है. सो इफ यू आर पुअर इन मैथ्स और इफ यू आर फियरिंग विथ मैथ्स,
कुछ स्टूडेंट जिन्होंने इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होती है वो भी क्वालिफाई कर जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही कंप्लीटली, जैसे अक्षय सुनील वो क्वालिफाई कर गया दोनों में, इनफैक्ट सिविल सर्विस में और इकोनॉमिक सर्विस के अंदर भी। उसका ग्रेजुएशन लेवल पे बैकग्राउंड नहीं था, तो उसने कंप्लीटली कोर्टिस वाला सेक्शन ही, मतलब जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे वो छोड़ दिए। अब जो डिफाइन करने वाली चीज़ें वो तो सॉल्व नहीं करना, वो तो डेफिनेशन है, डिफाइन ऑटो कोरिलेशन। तो इस तरीके का जो टर्म होगा, इट इज नॉट दैट आउट ऑफ 100 ऑल 100 इज बेसिकली यू हैव टू सॉल्व, आउट ऑफ दैट 100 ऑल्सो 30-40 मार्क्स की क्या है, थियरी है, 30-40 मार्क्स की थियरी है, रिमेनिंग आपको वहां सॉल्व करना है। तो 30-40 मार्क्स की जो थ्योरी है कम से कम वो तो लिख सकते हैं। तो अगर ये डिफिकल्ट है तो भी याद रखिएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये सेड 50% स्कोर करना है, एंड फॉर दैट पर्पज 100% पेपर अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये नहीं कह रहा है कि ये ऑल 10% आपको फॉरगो करना है, बट 10% के अंदर भी आप अराउंड 30-40 मार्क्स का पेपर तो थ्योरी के फॉर्म में अटेम्प्ट कर लेते हैं। बट डिफिकल्टी अगर आपको कैलकुलेट करने में है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं, देन द प्रॉब्लम इज लिमिटेड इन पेपर 1, वो प्रॉब्लम आपका लिमिट है पेपर 1 के लिए। सो यू हैव इनफ टाइम, ठीक है। जो क्लास हो जाएगी उससे आई थिंक अगर कोई फियर होगा भी तो वो सॉल्व हो जाएगा ऑल्दो। तो क्लास का जो कंटेंट होगा दैट विल बी वेरी एग्जॉस्टिव इन मैथ, स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स आल्सो, सो टू कंप्लीटली रिलाई ऑन द लेक्चर एंड आल्सो फॉर द माइक्रो न्यूमेरिकल पार्ट। नाउ कम टू द second paper, this general economics second paper starts with economic thought। ये old economic thoughts है। out of these one question कंपल्सरी में कभी आ जाता है, लाइक शुम्पीटर का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देना, या क्लासिकल कंसेप्ट या मार्क्सिस्ट कंसेप्ट, बट बहुत ज़्यादा वेटेज उसका नहीं होता। इट इज नॉट दैट क्वेश्चन विथ ग्रेटर वेटेज विल कम फ्रॉम दैट सेक्शन। Second is concept of national income and social income accounting, theory of employment output, and this is an important section, theory of employment output, inflation, money and finance। ठीक है, इसमें क्लासिकल थ्योरी कंप्लीटली, Keynesian theory completely, but when I say Keynesian theory it basically include what, topics of ISLM। तो ISLM के न्यूमेरिकल रेगुलरली पूछे गए और क्लासिकल मॉडल के कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लाइक व्हाई इन द क्लासिकल मॉडल चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल नॉट अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड। क्लासिकल मॉडल का एग्रीगेट डिमांड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से अफेक्टेड नहीं होता है, बट व्हाई in Keynesian model when you write y, then y is basically AD and AD is C plus I plus G। So in the when government expenditure increases we expect aggregate demand to increase, but in the classical model change in government expenditure will not affect aggregate demand because interest rate play the stabilizing role there। वहाँ interest rate stabilizing role play करता है। That means you are expected to know the concept of loanable fund theory, and by using that loanable fund theory of interest explain why change in government expenditure will not affect aggregate demand। अब इन सब का एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। एग्जैक्ट कहने का मतलब है फ्रॉइन में जैसा लिखा हुआ है एज इट इज, देन आउट ऑफ 15, अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू स्कोर अराउंड 9 और 10 तो योर आंसर मस्ट बी परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, कंटेंट याद रखिएगा, एक परसेप्शन होता है स्टूडेंट का कि ओके आई नो द कंसेप्ट, since I know the concept I will be able to express in my own words। यूपीएससी को वो पसंद नहीं है। आप जितने कम से कम अपने वर्ड यूज करोगे वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। इन कोर पेपर ऑफ फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर यू मे यूज योर ओन वर्ड्स इन इंडियन इकोनॉमी, वहाँ पे वो पे कर जाएगा, बट नॉट इन फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर। वहाँ पे वर्ड्स चाहिए उनको बुक वाले, और बुक में भी एग्जैक्टली कुछ स्पेसिफिक बुक है, तो जो स्पेसिफिक बुक होगा उनका कंपाइलेशन दैट विल बी गोइंग टू बी योर स्टडी मटेरियल। सो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बाई मल्टीपल बुक्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज इन द क्लासिकल मॉडल आई से चैप्टर 3 and 4 ऑफ फ्रॉइन, सो ओनली 2 chapter ऑफ क्लासिकल फ्रॉइन, बट रीड क्लासिकल मॉडल फ्रॉम दैट बुक ओनली। इफ आर स्टडिंग मार्केट स्ट्रक्चर, perfect competition, monopoly, monopolistic, oligopoly, then read it from Kotsianis।
ऑल्दो पॉपुलरली बुक में यू ऑल्सो रेफर एच एल आहूजा, बट एच एल आहूजा को थोड़ा केयरफुल्ली यूज करना है. देर आर सर्टेन वी कैन से लूप होल्स इन दैट बुक एज वेल. कुछ मेरिट भी है, डीमेरिट भी है, तो मुझे दोनों पता होना चाहिए. जहाँ मेरिट है वो तो पढ़ लेंगे, बट जहाँ डीमेरिट है वहाँ सप्लीमेंट करना होगा. लाइक क्वेश्चन इन द चैम्बरलिन मॉडल. और चैम्बरलिन मॉडल में देर इज अ मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी. मतलब मॉडल ए विथ प्राइस कॉम्पिटिशन, मॉडल बी विथ फ्री एंट्री, देन मॉडल सी विथ प्राइस कॉम्पिटिशन एंड फ्री एंट्री बोथ. ये 3 सेपरेट मॉडल क्वेश्चन में वेल एक्सप्लेन्ड है और ये रेगुलरली क्वेश्चन आता है. बट एच एल आहूजा में इन तीनों को सेपरेट करके नहीं बताया गया, उसने सिंगल एक मॉडल दे रखा है. सो इट बिकम्स वी कैन से कॉम्प्लिकेटेड. But if you read H. L. Ahooja for Calories compensation criteria, Satorsky criterion welfare, well explained. Calories distribution theory well explained. So you have to use it intelligently. तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं उसके अलग सोर्सेज आपको बताए जाएंगे. So you don't have to buy any book. Then the fourth part is financial and capital market. Then economic growth and development. In that economic growth and development there are multiple growth models, and in fact they are not one or two, around 10 and 15 growth models are there, starting from Harrod's model, Harrod-Domer model, Lewis model, Harris-Todaro model, dependency model, Lewis model, then Romer model, AK model, Solow model, neoclassical model, endogenous growth theories, exogenous growth theories. तो जितने भी मॉडल्स बेसिकली आप यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, रिमेंबर इट इज नॉट दैट एवरीथिंग इज मेंशन इन द सिलेबस. कुछ चीजें मेंशन होंगी और कुछ चीजें मेंशन नहीं होंगी, बट क्वेश्चन में रहेगा वो. दैट मीन्स यू आर ऑब्जर्विंग सर्टेन थिंग्स जो सिलेबस में लिखा. ऑल्दो इकोनॉमिक सर्विस का जो सिलेबस है वो ज़्यादा इलाबोरेटेड है यूपीएससी के साइड पे एज कम्पेयर टू द सिविल सर्विस. वहाँ तो बस मार्केट स्ट्रक्चर लिख देते हैं, मोनोपोलिस्टिक, डियोपोली और इकोपोली, 3 वर्ड छोड़ दिया. अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेते हैं. यहाँ तो फिर भी काफ़ी डिटेल मिल रहा है. इकोनॉमिक सर्विस का सिलेबस काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी है वहाँ पे प्रेजेंट है. तो ग्रोथ मॉडल्स विल बी अ मेन टॉपिक, एंड लाइक लिविंगस्टन थ्योरी, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, डिपेंडेंसी अप्रोच, और फिर अलग अलग डेवलपमेंट एचडीआई का कंसेप्ट है. तो फिर क्वेश्चन सिर्फ ट्रेडिशनल एचडीआई का ही नहीं होगा. वाई वी नीड टू एडजस्ट एचडीआई फॉर इनइक्वालिटी. मान लो ये क्वेश्चन है, वाई वी नीड टू एडजस्ट एचडीआई फॉर इनइक्वालिटी. तो इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई पता होना चाहिए, जो रिसेंट मेजर्स है वो मालूम होना चाहिए. वट एवर द ड्रॉबैक ऑफ एचडीआई. आफ्टर दैट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स 6. इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. One, all theories of trade, and second is your balance of payment. Theories of trade is micro approach and balance of payment is macro approach. So micro और macro ये दो separate approach होंगे. तो first part will be the theories and second part will be the balance of payment. And last में इसमें global institutions है, World Bank, IMF, WTO and MNCs. clear. तो ये second और third is second paper is mainly growth and development and international. थर्ड पेपर इज टॉकिंग अबाउट पब्लिक फाइनेंस, बट पब्लिक फाइनेंस में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना है. एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स. एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का कंटेंट इकोनॉमिक सर्विस में एज कंपेयर टू सिविल सर्विस इज वेरी वाइड. सो इन दैट थर्ड पेपर यू विल फाइंड मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स. सो यहाँ पे थोड़ा अलग से ये क्लास याद रखिएगा. अराउंड 7 to 10 लेक्चर आपके बिल्कुल सेपरेट होंगे फॉर दी इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा इकोनॉमिक सर्विस के लिए, उसके लिए. और इसमें रिसेंट सारे हो जाते हैं लाइक क्योटो प्रोटोकॉल या पेरिस एग्रीमेंट बोथ. देन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स इज मेनली मार्केट स्ट्रक्चर. अब मार्केट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन विल फाइंड इन पेपर 1 ऑल्सो. 1 के अंदर भी है और ये 3 के अंदर भी मिलेगा. स्टेट मार्केट एंड प्लानिंग, but mainly it will be basically the market structure, industrial economics. कुछ चीजें सिलेबस के अंदर हैं, बट वो आप पेपर अगर आप लास्ट 15 ईयर का देखोगे तो कभी क्वेश्चन में वो आया नहीं. और कुछ चीजें जो सिलेबस में नहीं लिखी हुई है वो रेगुलरली आ रहे हैं, तो आपको वो ध्यान देना है. ये नहीं कि सिलेबस में लिखा हुआ है तो हम सिलेबस को पकड़ लिया कि ये ठीक है मुझे ये पढ़ना है.
तो सिलेबस में जो लिखा ऑब्वियसली यू आर एक्सपेक्टेड टू रीड ऑल, बट देर आर सम पार्ट्स इन दैट सिलेबस never asked in the paper, and few things which are repeatedly asked but not mentioned in the syllabus. And the fourth paper is Indian economics. Indian economics is history of development and planning, but all are post independence, it is not pre independence. इसको स्टडी करने का बेटर अप्रोच ऑल्दो होता है कि आप इंडियन इकोनॉमी को सेक्टर वाइज स्टडी करो तो इट विल बी बेटर. सेक्टर वाइज मीन्स मेक वन सेक्टर एग्रीकल्चर. Within agriculture, what are the questions asked? Make subtopic within agriculture, like agriculture price policy, agriculture performance, green revolution, then food management, PDS related question. तो agriculture के सारे question आपने एक जगह कर लिए. And then from any core book like you can refer here Mishra and Puri for the static part. I will suggest Mishra and Puri over Uma Kapila because मिशा पुरी से आंसर लिखना थोड़ा इजी होता है. उमा कापिला में ऑल्दो उमा कापिला में ईपीडब्ल्यू के आर्टिकल्स है, वो एडिटेड आर्टिकल्स होते हैं, बट यू हैव टू फ्रेम योर ओन आंसर देयर. आपको आंसर बनाना पड़ेगा वहाँ से. वो तो जर्नल में लिखा मतलब आर्टिकल है पूरा, वो आंसर नहीं लिख रहे. वो मिशापुरी में क्या होगा, सारी चीज़ें थोड़ी बोल्ड लेटर्स में जो मेन पॉइंट्स ऑफ एक्सप्लेन है, लाइक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म 1 2 3 गिवन है, मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म वो पॉइंट वर्क में गिवन है, इवोल्यूशन ऑफ लैंड रिफॉर्म वो पॉइंट लिखा हुआ है. तो अगर आप वो पॉइंट्स एक जगह अपनी नोटबुक में लिख लो तो एटलीस्ट दैट मच यू नो, देन यू हैव टू बिल्ड देयर. सो इट विल हेल्प इन प्रिपेयरिंग आंसर प्रिपेयर करने. बट फॉर इंडियन इकोनॉमी यू हैव टू सप्लीमेंट इट विथ इकोनॉमिक सर्वे. यूज सर्वे लैंग्वेज एज मच एज यू कैन, वो आपको एज देगा स्कोर करने में. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई सेड एग्रीकल्चर पढ़ना, फूड मैनेजमेंट पढ़ना, आप ओपन करना एग्रीकल्चर चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे का, विद इन दैट फूड मैनेजमेंट की एक हेडिंग होगी, जस्ट रीड दैट फर्स्ट पैराग्राफ, हाउ वेल इट इज रिटन, वेल क्राफ्टेड होते हैं वर्ड्स. प्राइस पॉलिसी के नीचे का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो पढ़ के देखो, तो वो पैराग्राफ यू आर एक्सपेक्टेड टू यूज इन दी आंसर शीट. अगर आप कोई स्टूडेंट वो यूज कर लेता है, वैसे ही लिख देगा कोई, तो सर्टनली स्टूडेंट के नंबर बढ़ने वाले. दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ अराउंड 25-13 नंबर होंगे पूरे सर्वे के अंदर. एमएसएमई के नीचे का पैराग्राफ ले लिया, कंपोजिशन डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का ले लिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान का पैराग्राफ ले लिया, अराउंड 25-30 पैराग्राफ है. जस्ट राइट दोज पैराग्राफ सेपरेटली इन योर नोटबुक, रीड इट अगेन एंड अगेन, ट्राई टू रिप्रोड्यूस इट. आउट ऑफ दैट 25 and 30 in examination you will be able to use at least 8 or 10. बट जितने 8 और 10 क्वेश्चन में आप यूज करोगे उसमें एज मिल जाएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर 1 नंबर का भी एज मिलता है तो अगर 10 क्वेश्चन ऐसे आपने लिख रखे हैं तो 10 मार्क्स का डिफरेंस हो गया. 100 और 110 का ये फर्क होगा, या 90 और 100 का ये फर्क होगा. सो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट सर्वे मोर एंड मोर. सो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पब्लिक फाइनेंस, मॉनेटरी मैनेजमेंट, प्राइस एंड इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल सेक्टर, ग्रोथ रिकॉर्ड, तो ये सेक्टर वाइज आपको स्टडी करना है इंडियन इकोनॉमी को, रादर देन जो इस फॉर्मेट में गिवन. तो बट यहाँ भी है फेडरल फाइनेंस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लेबर, फॉरेन ट्रेड, इसको एक्सटर्नल सेक्टर के फॉर्म में, या मनी एंड बैंकिंग, इन्फ्लेशन एंड सो ऑन. तो अराउंड 11 टॉपिक्स, सब टॉपिक्स आर देयर. मतलब ये सिलेबस में ऑलरेडी अरेंज करके दिया हुआ. इंडियन इकोनॉमी में स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. 2 जगह जहाँ पे स्टूडेंट को डिफिकल्टी होती है, वो फर्स्ट पेपर है और इंडियन इकोनॉमी का पेपर. बिकॉज इंडियन इकोनॉमी में द नेचर ऑफ क्वेश्चन समटाइम्स मेक इट डिफिकल्ट. या तो उससे रिलेटेड कुछ आ ही नहीं रहा था, आपसे पूछा गया व्हाट मेजर्स हैज बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर. क्वेश्चन में आ गया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में क्या मेजर्स दिए गए. अगर आपने पढ़ा ही नहीं है उसको तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट आंसर दैट. बट अगर आप सर्वे डिटेल में पढ़ रहे हो तो इसके अंदर वो आंसर है. दैट इज व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन सर्वे मोर. बट आपके एग्जामिनेशन के लिए जो सर्वे रेलिवेंट हो जाएगा वो फरवरी मार्च में आना है. ठीक है, सो व्हेन दैट सर्वे विल कम इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च, तो उसके अंदर वो क्लास आपको सेपरेट हो जाएगी. बट बाय दैट टाइम आप 21-22 का जो सर्वे है उसको देख सकते हो. ठीक है, उसके रिलेटेड कुछ क्लासेज हैं वो भी अवेलेबल है, वो ओपन क्लासेज होती है. मतलब
फ्री अवेलेबल है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर 4 पेपर. ठीक है जी. नेक्स्ट 1 क्लियर है. सेकेंड जनरल इकोनॉमिक्स 3 एंड इंडियन इकोनॉमी. ठीक है. ये जो 800 मार्क्स होगा ये डिटरमाइन करेगा मेनली आपके सिलेक्शन. इस 800 में आपको स्कोर ज्यादा करना है बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट डू नॉट स्कोर वेल इन इंग्लिश एज वेल एज इन जीएस, क्योंकि वो थोड़ा नेग्लेक्टेड एरिया रह जाता है, और रह जाता है तो वो और डिफिकल्टी वहाँ ज़्यादा है. मतलब जो सेलेक्ट होते हैं वो भी लेस देन 40 स्कोर करते हैं इंग्लिश के अंदर भी. मतलब 40 स्कोर कर रहे हो, यू आर स्कोरिंग गुड देयर. सो गिवन दैट यू आर गोइंग टू स्कोर लेस देयर, ऑल्दो वो क्लास भी होगी, उस क्लास के अंदर भी जो एक्सप्लेन किया जाएगा उसमें टिप्स मिल जाएगा कि हाउ यू कैन मैनेज. But if you are scoring around, let us say 40-45 in English and General Studies, that will be considered as a good score. That means you have to score more in your core. Out of these 4, suppose अगर 1 पेपर भी आपको कोई पुश कर जाता है, you can score like 120 so on. Even in 1 paper, you can score around 120. That will give a greater push to make a strong paper. और जो weak paper है उसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश मत करना, वो वेस्टेज ऑफ एफर्ट होता है. कि जो मेरा जो वीकनेस है उसको मैं स्ट्रेंथ बना रहा हूँ. जो वीकनेस है उसमें डैमेज कंट्रोल करना है. मतलब ऐसा स्कोर मत करना है कि बिल्कुल आउट ऑफ रेस हो गए उसी पेपर की वजह से, लाइक 60 आ गए तो वो बिल्कुल आउट ऑफ रेस हो गया. जितने एफर्ट उधर कर लो, एक पेपर में 60 आ गया तो बाहर हो गया. तो डैमेज कंट्रोल करने का मतलब है स्कोर ऑफ अराउंड 85-90 इज कंसिडर्ड एज सेफ स्कोर. 85-90 से आप बाहर नहीं हो रहे हो, बट 70 आ गया, 65 आ गया तो उसे बाहर हो गए. तो जो डिफिकल्ट पेपर है आपके अकॉर्डिंगली ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा. सो जो डिफिकल्ट पेपर है उसमें भी स्कोर अराउंड 90, एंड जो स्ट्रेंथ है उसमें मैक्सिमाइज करना, मतलब इन एक्सेस ऑफ 110. सो इन एक्सेस ऑफ 110 विल बी कंसिडर्ड अ वेरी गुड स्कोर. ठीक है. तो यहाँ तक के ये सिलेबस आपको क्लियर है. कट ऑफ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा. योर फोकस शुड बी ऑन दिस बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू गेट सेलेक्टेड हियर. तो ये आपका फोकस वहाँ पे क्लियर होना चाहिए. द सेफ स्ट्रैटेजी विल बी टू स्कोर अराउंड 480, 490 और 500. देन आई हैव एक्सप्लेन द सिलेबस पार्ट. अब इसमें एक कोर्स कंटेंट में you will be given a test series. Now in that test series there will be 15 tests in total. 15 tests in total है, जिन इकोनॉमिक्स 1 के 2 सेक्शनल हो गए कॉम्प्रिहेंसिव, जिन इकोनॉमिक्स 2 के 2 सेक्शनल हो गए और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव, फिर थर्ड में 2 सेक्शनल एक कॉम्प्रिहेंसिव. And the schedule of all tests is basically here. Your test series will start from 28th of August next month. So after a month, ठीक है, क्लास स्टार्ट होने के 1 महीने के बाद से आपका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल होगा. बट यू आर फ्री टू अपलोड आंसर ऑफ दिस टेस्ट टिल योर एग्जामिनेशन इन 2023. The question paper will be uploaded in August, first paper. बट आप उसको सबमिट करने के लिए फ्री हो टिल, मतलब जब आप प्रिपेयर्ड हो जाते हो आपको सबमिट करना है वो. एंड द कंटेंट ऑफ फर्स्ट पेपर विल बी बेसिकली, द फर्स्ट टेस्ट विल बी मेनली माइक्रो ओनली. फर्स्ट पेपर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सो इट इज ओनली माइक्रो. देन द सेकंड पेपर विल बी फॉर जनरल इकोनॉमिक्स 2. जनरल इकोनॉमिक्स 2 भी 2 का 1 सेक्शन आएगा. सो इनफ गैप हैज बीन मेंटेन्ड हियर, 28th अगस्त एंड देन ऑफ 18th September. That means initially we are keeping 1 test in a month till November, December, and then frequency of test will increase. ठीक है. और ये जितने भी सिलेबस यहाँ आ जाएगा उसका मेंशन्ड है. इन टोटल 15 टेस्ट होंगे आपके. बट फॉर्मेट ऑफ ईच टेस्ट विल बी अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी फॉर्मेट. मतलब वहाँ जैसे क्वेश्चन आता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी,
Section A will have 6 question, 5 marks each. Section B will have 9 question, you have to attempt any 6, 15 marks each. Section C will have 6 question, you have to attempt any 4, 20 marks each. ठीक है, तो 3 सेक्शन में बेसिकली हर पेपर डिवाइडेड होगा, पेपर 1, पेपर 2 एज वेल एज पेपर 3. नाउ टेस्ट सीरीज वाला पॉइंट क्लियर, मतलब टेस्ट सीरीज को याद रखिएगा जब आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं तो it is not that you have to write only that test. Apart from that test, make a habit of writing answer on a daily basis. So you must answer daily answer writing practice. Daily answer writing practice means every day write around 2 or 3 questions from previous year. That will help you. मतलब जो भी आप स्ट्रक्चर कर रहे हैं कि सपोज यू आर रीडिंग market structure in this month in the micro and classical ISLM in macro, तो topic wise question आपके पास होगा. just decide 2 question today that you are going to write tomorrow so that you will be have enough time to learn. तो जो नोटबुक में आपने लिखा हुआ है, पहली बात वो नोटबुक में लिखना कहाँ से है, जो क्लास में डिक्टेट हुआ, क्लास में जो डिक्टेट हुआ उसका सोर्स क्या था, जो रेफरेंस बुक होगी, तो रेफरेंस बुक का कंटेंट आपके क्लास नोट्स में, learn it, write it on a regular basis. But अगर आप 2-3 क्वेश्चन every day लिखते हो, suppose you write only 2 question every day, in a month you are writing 60, over a period of 6 months you are writing 360 क्वेश्चन. अगर ये प्रैक्टिस अभी से लेके एग्जामिनेशन तक कर लो तो 1000 क्वेश्चन तो आपने वैसे लिख दिए. ठीक है, 700-800 क्वेश्चन बेसिकली दैट विल बी इन एडिशन टू द टेस्ट. वो जो डेली आंसर लिखोगे दैट विल हेल्प इन योर आंसर राइटिंग. वो एक मोमेंटम आता है, लिखने में हमेशा थोड़ा डिफिकल्टी होती है, मतलब आप बैठ के लेक्चर सुन रहे हो वो इजी वर्क है, मैं बोल रहा हूँ वो भी मेरे लिए इजी है, बट हम दोनों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा जब अभी क्या है लिखने लगो. मतलब इफ आई से दिस गिव अ सिनॉप्सिस ऑफ दिस ओरिएंटेशन क्लास, राइट 100 वर्ड्स, यू कैनॉट राइट वन सेंटेंस विदाउट फोकसिंग योर माइंड. बट यू कैन टॉक, यू कैन लिसन विदाउट फोकसिंग. आप सुन रहे हो बट सोच कुछ और रहे हो, ये पॉसिबल है. बट आप एक लाइन लिख करके देखो और कुछ और सोच लो. जस्ट ट्राई वन सेंटेंस. यू कैनॉट राइट अ सेंटेंस विदाउट फोकसिंग. दैट मीन्स राइटिंग इज अ बेटर वे ऑफ लर्निंग थिंग्स. राइटिंग इज अ बेटर वे ऑफ लर्निंग थिंग्स. आप जितना मर्जी पढ़ो बट अगर आप लिख नहीं रहे हो, मतलब अपने स्टडी के आउटकम को इवेल्युएट कैसे करना है, आपने कितना लिखा है, कितना पढ़ा है उससे इवेल्युएट नहीं करो, आपने कितना लिखा है वो इवेल्युएट करो. तो एवरी डे अगर 2-3 क्वेश्चन लिख रहे हो दैट विल बी योर परफेक्ट लर्निंग. सो फोकस ऑन दैट डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. एंड नाउ आई कम टू द फाइनल पार्ट, दैट मीन्स द ओवरऑल lecture in this economic service will be approximately, you can say 230 to 240 lecture, 230 and 240. Out of that 230 and 40, 130 to 140 lecture ये कॉमन होता है विथ सिविल सर्विस एग्जाम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल. ठीक है, ये इन कॉमन है, मतलब दोनों के लिए वो क्लास सेम रहती है. देन अप्रोक्सीमेटली 100 लेक्चर दैट विल बी फॉर स्पेसिफिक टॉपिक फॉर आईएएस. तो स्पेसिफिक टॉपिक फॉर आईएएस में क्या इनकोड हो जाएगा, माइक्रो न्यूमेरिकल, इकोनॉमेट्रिक्स, दैट इज कंप्लीटली पेपर 1. सो अराउंड आई थिंक 50 लेक्चर तो फर्स्ट पेपर को कवर करने में लग जाएंगे. देन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, देन अदर पार्ट जो ऑप्शन में कवर नहीं हो रहा है वो कवर करना है, एंड योर जनरल स्टडीज क्लासेस एज वेल प्लस योर लैंग्वेज क्लास एज वेल. मतलब वो कंबाइन मिला करके अप्रॉक्सीमेटली 100 लेक्चर ही हो जाएगा. ये 130 to 140 जो लेक्चर है ये क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे 2:45 to 5 PM ये क्लास हो रही है. और जो स्पेसिफिक टॉपिक की क्लास होगी अलग से इसको अनाउंस कर देंगे, ये क्लास से पहले या क्लास के बाद या वीकेंड में, बट दैट विल बी अनाउंस. सो आउट ऑफ दैट 100 द फर्स्ट क्लास विल बी टुडे. ठीक है, जो स्टार्ट हो रहा है वो आज से ही हो जाएगा.
तो इसकी जो पहली क्लास होगी वो आज होगी, फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब जो बैच इकोनॉमिक सर्विस का है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। दी क्लास फॉर इकोनॉमिक सर्विस इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। ठीक है, जो जिनकी क्लास सिर्फ ऑनलाइन है तो आज से बेसिकली उनकी क्लास स्टार्ट है। एवरी डे उनके पोर्टल पे अभी मंडे टू फ्राइडे एक लेक्चर अपलोड होंगे, प्लस मतलब दो कोर्स बेसिकली वहाँ होंगे। वन कोर्स विल बी दी फॉर सिविल सर्विस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, आई सेड दैट इज कॉमन। सो 140 लेक्चर अप्रोक्सीमेटली ये होने, और सेकेंड पार्ट विल बी दी स्पेसिफिक टॉपिक। तो जिनकी क्लास ऑनलाइन है याद रखेंगे उनके कोर्स में दो कोर्सेज होंगे, वन फॉर द इकोनॉमिक्स ऑप्शन, अदर फॉर स्पेसिफिक टॉपिक। तो दोनों वीडियो अलग अलग जगह अपलोड हो रहे हैं। तो मंडे टू फ्राइडे ये वीडियो अपलोड होगा, बट ये जो क्लास चलेगी ऑनलाइन में इसमें जो वीडियोज अपलोड होंगे ये 28 जून, ठीक है 22, ये जो बैच स्टार्ट हुआ इकोनॉमिक्स ऑप्शन का वो वाली क्लास होगी। दैट मीन्स उन 28 जून को जो लेक्चर अपलोड हुआ था, रिकॉर्ड हुआ था, वो 26 जुलाई वाले इकोनॉमिक सर्विस के बैच के लिए फर्स्ट लेक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट डे वाली क्लास सेकंड लेक्चर। सो इन दैट बैच ऑलरेडी 17 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, तो 17 लेक्चर हो गए, तो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीडे आपको एक एक क्लास मिल रही है वो। बट वो क्लास याद रखिएगा 28 जून से जो रिकॉर्डेड है, मतलब यू कैन से प्री रिकॉर्डेड सॉर्ट ऑफ। तो 17th लेक्चर को तो आपको ऑनलाइन आपको प्री रिकॉर्डेड देखना, बट इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द 18th लेक्चर एंड यू वांट टू सी इट लाइव, तो फिर लाइव की क्लास आप देख सकते हो। मतलब आज की जो क्लास होगी वो आप क्लास आप लाइव देख सकते हो, बट दैट विल बी दी 18th क्लास। तो 17 लेक्चर में आपके पास लाइव का ऑप्शन नहीं रह गया। आउट ऑफ 240 17 लेक्चर में लाइव का ऑप्शन नहीं है, रिमेनिंग आपके लिए लाइव भी है और ऑफलाइन भी है। क्लियर? इफ यू आर अटेंडिंग ऑफलाइन, तो ऑफलाइन के अंदर भी याद रखिएगा सेम थिंग। जो बैच आप ज्वाइन कर रहे हैं वो बेसिकली 28 जून वाले बैच में इसमें 17 लेक्चर हो गए। तो अगर आपकी क्लास ऑफलाइन है तो आउट ऑफ दैट 240 17 लेक्चर यू हैव टू सी ऑनलाइन, रिमेनिंग ऑफलाइन। ऑल क्लास इन द स्पेसिफिक टॉपिक अभी वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो वो तो आपकी सारी क्लास होनी है। सो एक्सेप्ट 17 लेक्चर एवरीथिंग विल बी योर ऑफलाइन। क्लियर? तो ये ऑफलाइन का जो बैच होगा उसमें याद रखिएगा योर टाइमिंग इज बेसिकली 2:45 to 5 एंड दैट विल बी मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, ये वाली क्लास आपकी ये हो जाएगी और स्पेसिफिक टॉपिक की क्लास इन बिटवीन। एंड वी एक्सपेक्टेड टू cover entire thing for economic service approximately by January end। ठीक है, मतलब आज से अगर जनवरी एंड का मतलब 26 जुलाई टू 26 जनवरी लेते हो, दैट मीन्स 6 मंथ है। ठीक है, 6 मंथ दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 180 डेज हो गए। 180 डेज है और क्लासेस 240 है। तो अगर एवरी वीक मतलब एवरी डे अगर हमारी एक क्लास चलेगी तो भी हम 180 लेक्चर पे जाते हैं, बट हमें 60 और ऐड करने हैं। दैट मीन्स इन अ मंथ अराउंड 40 लेक्चर करीब होने चाहिए, इन अ मंथ अराउंड 40 लेक्चर। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे तो ये क्लास आपकी ऑप्शन की एक तो हो ही रही है, प्लस स्पेसिफिक टॉपिक की एक्स्ट्रा क्लास हो रही है। तो दैट इज फिजिबल। दैट मीन्स मेक अ टारगेट ऑफ कंप्लीटिंग द बैच बाई जनवरी एंड। जनवरी एंड तक हो जाएगा, यू हैव इनफ टाइम। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अगर आप सिविल सर्विस भी दे रहे हो तो फोकस उसके बाद आपका प्रीलिम्स पे होगा और उसके बाद आपके पास स्टिल एक मंथ रहता है। ठीक है, तो जून एंड में आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड होगा 2023 का। ठीक है, यूपीएससी कैलेंडर में ऑलरेडी डेट अनाउंस है। सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग रिलेटेड टू। तो क्लास कोई भी आप ज्वाइन करते हो ऑनलाइन अगर करना है तो कोई इशू इन्वॉल्व है ही नहीं वहाँ पे। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि स्टार्ट के जो लेक्चर अपलोडेड मिलेंगे, दैट मीन्स टुडे द फर्स्ट क्लास जो अपलोड होगी इन दिस कोर्स that was recorded on 28 जून। ठीक है, और वैसे एक एक क्लास करके अपलोडेड होती जाएगी। स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर जो फर्स्ट क्लास अपलोड होगी आज, वो आज ही रिकॉर्ड होगी।
ठीक है, वो आपकी पहली क्लास है. सो एनी अदर क्वेश्चन दैट यू वांट टू नो रिलेटेड टू इकोनॉमिक सर्विस? कोई क्वेरी? मटेरियल वगैरह याद रखिएगा, एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड. यू विल बी गेटिंग स्टडी मटेरियल. इफ यू आर ऑफलाइन ज्वाइनिंग तो स्टडी मटेरियल आप कलेक्ट कर लेंगे. 10 से 11 स्पाइरल होंगे, माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमेट्रिक्स एंड सो ऑन. एंड अगर आप ऑनलाइन है तो वो मटेरियल आपको बाय कुरियर सेंड किया जाता है. ठीक है, एनी अदर क्वेरी? इकोनॉमेट्रिक्स की बुक, अभी इकोनॉमेट्रिक्स की पहली क्लास है, सर बताएंगे सारा डिटेल इकोनॉमेट्रिक्स का. बेसिकली दामोदर गुजराती जो कॉमन बुक है वो स्टूडेंट प्रेफर करते हैं. इसके अलावा कुछ होगा कंटेंट में? आई डोंट थिंक. अब अगर आप क्लास कर रहे हो ना तो आपको किसी बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू टोटली डिपेंड अपॉन द लेक्चर्स. टोटली इन द सेंस कि 240 लेक्चर मैंने कहा, एवरीडे की क्लास में अराउंड 10 to 15 साइट्स एटलीस्ट आप कंटेंट लिख करके जाओगे यहाँ से. दैट मीन्स अराउंड 300 पेजेस का तो कंटेंट आपका वैसे हो जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा. दैट कंटेंट इज इनफ. वो कंटेंट आपके टिप्स पे होना चाहिए, बिकॉज वो एग्जामिनेशन बैक टू बैक होगा. फाइनल डे जब आपको रिकॉल करना है ना तो वो रिकॉल नहीं हो पाता, आप चाहे जितना मर्जी पढ़ के जाते हो. सो योर फोकस शुड बी ऑन, मतलब उसको रिपीटेडली पढ़ना है जो एक्सप्लेन किया जाएगा. एनीथिंग मोर? ठीक. न्यूज़पेपर का रोल लिमिटेड है, वैसे भी पढ़ना है. अगर इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम आप नहीं दे रहे हो तो भी पढ़ना है, उसका इंट्रिंसिक वर्थ है. ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंटल सिर्फ नहीं है कि एग्जामिनेशन देना है तो न्यूज़पेपर पढ़ना है. अगर आप उसको एग्जाम से रिलेट करके पढ़ोगे तो वो स्टडी का पार्ट लगने लगेगा, फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए. तो आप वैसे ही पढ़ो, द हिंदू पढ़ रहे हो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो या मिंट पढ़ रहे हो तो वैसे भी पढ़ो, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. बट इफ यू से एग्जैक्टली कोई क्वेश्चन आएगा वहां से, इट विल हेल्प इनडायरेक्टली. आई विल नॉट से डायरेक्टली. डायरेक्टली तो नहीं हेल्प कर रहा है, इनडायरेक्टली थोड़ा हेल्प कर देता है. इनडायरेक्टली इन द सेंस, सपोज कोई क्वेश्चन आपने प्राइस पॉलिसी का कोई आर्टिकल पढ़ लिया, वहाँ पे अरविंद सुब्रमण्यम का आर्टिकल आया था या महेंद्र देव का आर्टिकल था, वो आपने उसमें पढ़ा, उसमें से कुछ बेटर सेंटेंस थे, आपने उसको रजिस्टर में कॉपी किया था, वो आंसर में आप इंकॉर्पोरेट कर पाए. इट इज गिविंग सम एज, तो इन दैट पर्पज. बट इफ यू से डायरेक्टली, तो डायरेक्टली बहुत रिमोट क्वेश्चन, मतलब इंडियन इकोनॉमी के अंदर स्टार्ट के जो पेपर है उसमें तो कोई रोल है ही नहीं. फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर. रही गई बात इंडियन इकोनॉमी के लिए, तो फॉर इंडियन इकोनॉमी आई विल से रादर देन, मतलब न्यूज़पेपर मैंने कहा ना, मैं उसको मना नहीं कर रहा, बट उसको आप एग्जामिनेशन से लिंक करके भी मत देखना. बट रीड सर्वे इन डिटेल. सर्वे डिटेल में पढ़ो, सर्वे में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, वो यूजफुल होगा आपके लिए डॉक्यूमेंट पढ़ना. और बाकी न्यूज़पेपर का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगता है, अगर लेटर से इफ यू आर रीडिंग हिंदू, हाँ इकोनॉमिक सर्वे की सारी क्लास मिलेगी आपको, यहाँ से मिलेगी. स्टडी मटेरियल तो ओपन होता है पीडीएफ साइट पे, वो कॉपी करके आपको ऐसे ही दे देंगे इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा. ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन आजकल तो फिजिकल फॉर्म में, मतलब वो नहीं अवेलेबल होता, ऑनलाइन वो अपलोड कर देंगे. बट उसकी क्लास होगी, मतलब सर्वे की क्लास अराउंड 7 लेक्चर होंगे सेपरेटली, वो फरवरी मार्च के मंथ में होगा. मतलब क्लास आपकी जनवरी खत्म हो जाएगी, फिर भी मार्च के मंथ में इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर अपलोड होंगे. ठीक है, तो वो एग्जॉस्टिव होता है कंप्लीट. हाँ, पोर्टल पे अभी जो अपलोडेड है, ऑब्वियसली जो अभी तक अवेलेबल है, तो 21-22 का सर्वे अपलोडेड है. 22-23 का आएगा जब मार्च के मंथ में, तो इट विल बी अपलोडेड. वो एवरी ईयर जो भी स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं उनको वो फ्री में मिलता है. मतलब उसको ये नहीं कि पोर्टल का एक्सेस नहीं है तो नहीं देख पाएंगे, एक्सेस नहीं होगा फिर भी आप देख पाओगे, वो साइट पे ही फ्री होता है सर्वे वाले बजट वाली पास. एवरी ईयर 22, 23, 24, 25 जब तक आप पेपर दे रहे हो तब तक आपके लिए वो अवेलेबल रहेगा. ठीक है, सो फर्स्ट क्लास विल बी फॉर स्पेसिफिक टॉपिक, और जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड होगी ये क्लास होगी. ठीक है, थैंक यू.